This is going hydrogen and oxygen, and the percentage dissociation at this temperature is around 4%. Not only this, H2O also acts as a catalyst in many reactions. Uh, so, for example, ammonia dry and HCl dry, when mixed together, they do react to form ammonium chloride, but to a very less extent, very less extent, almost negligible. Okay? However, when they are weight, when we have them dissolved into water or we sprinkle water into them, sprinkle some water in aqueous format or sprinkled water, मतलब थोड़ा sprinkling कर दिया water का इनमें, and then we allow them to react. The reaction is very much forward, like they react to a good extent. ठीक है, a very good extent, significant amount of reaction takes place between them. So यहाँ पर H2O जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एटलीस्ट एंड प्रोडक्ट्स में दैट इज नॉट विजिबल. However, I mean, it is helping the reaction to proceed in forward direction. That means it is acting as a catalyst. ठीक है, तो water इन टोटलिटी एक तो रिएक्शंस करता ही है, रिएक्शंस करता है, एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करके वो रिएक्शंस होने में हेल्प करता है, रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स को टुगेदर लाने में, such that they can interact and do certain reactions. Apart from that, they also, I mean, it also perform the catalytic action. Catalytic action, that means it enhances the reaction. Uh, I mean, its presence actually enhances the percentage of reaction, percentage completion of the reaction. That means it has catalytic action as well. Next small thing is, if we have to test the presence of H2SO, H2O, water के presence को test करना है, तो जो भी चीज है उसका अगर एक दो बूंद बताते, if we apply few drops of it on anhydrous copper sulfate, ठीक है, anhydrous copper sulfate जो होता है that is generally white in color, बहुत फेंट ब्लूइश होता है, बहुत फेंट ब्लूइश, ऑलमोस्ट व्हाइट दिखेगा, ठीक है, बट इस पे वाटर जैसे ही डालेंगे हम लोग और हाइड्रेशन होता है CuSO4 का डॉट वाटर ले लेता है एंड इट टर्न्स आउट टू बी ब्लू. मतलब एक दो स्प्रिंकल्स ड्रॉप्स डालेंगे थोड़ा ब्लू होएगा, ज्यादा डालेंगे ज्यादा ब्लू हो जाता है, ठीक है. सो H2O का टेस्ट जो होता है वो यही होता है, इफ वी पुट एनी लिक्विड ऑन anhydrous CuSO4 and if that CuSO4 is turning out to be blue from white से blue अगर change हो रहा है color, that simply means that you have this H2O present over there, ठीक है. So again anhydrous CuSO4 पर liquid को sprinkle किया, white से blue color हुआ, that means H2O is present. Is it okay? The next thing about water is we have categorized water in two categories based on our uses. ठीक है, क्या क्या categories हैं? One is called hard water, another is called soft water. ठीक है, hard water, soft water क्यों? अच्छा, ये दोनों hard water and soft water दोनों जो होते हैं वो normal water होते हैं, H2O होते हैं, ठीक है. Don't confuse them with like एक D2O होता है और एक H2O होता है. Both of them is just H2O. हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन ऑक्साइड, प्रोटियम ऑक्साइड, डाइप्रोटियम ऑक्साइड, ठीक है. बोथ ऑफ देम आर डाइप्रोटियम ऑक्साइड. ड्यूट्रियम ऑक्साइड जो होते हैं या प्रोटियम ऑक्साइड भी इनको बोलते हैं. ड्यूट्रियम ऑक्साइड को हम लोग हेवी वाटर बोलते हैं, जो इसके बाद पढ़ेंगे हम. हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोग को सोप पता है ना, जनरली Yes, sir. कपड़े धोने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और या फिर नहाने के लिए बाथिंग सॉप, बेदिंग सॉप या फिर क्लीनिंग सॉप, ठीक है.
ठीक है, एक हाँ, सो क्लीनिंग सोप या बेलिंग सोप जो होता है वो जनरली सोडियम सॉल्ट्स होते हैं और बड़े ऑर्गेनिक ये ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं जैसे एक साइट्रिक एसिड C17 का एक होता है C17H35 COOH और सीरिएट। एक नाम इसका मैं भूल रहा हूँ, मुझे देखने दो। सीरिएट एसिड नहीं, सीरिएट नहीं होता। जनरली इसी एसिड का सॉल्ट जो सोडियम सॉल्ट जो होता है ना उसको हम लोग यूज करते हैं। ये सारे वॉशिंग सोप्स जो होते हैं ना दे यूज दैट along with some glycerine and all in order to make its effect milder. आज्ञा लेके वापस आने वाले हैं ना, तुम जब तक डिनर खत्म नहीं करोगे तुम नीचे भी देखे राइट में लीजिए ना स्क्रीन। एक से बात करो। Stearic acid. नाम भूल रहा। Its common name is stearic acid. S याद आ रहा है, नाम प्रॉपर नहीं आ रहा। स्टेरिक एसिड, ठीक है। इसको NaOH के साथ मिला देते हैं हम लोग तो इट फॉर्म्स C17H35 COONA, सोडियम स्टेरेट, सोडियम एस्टेरेट, ठीक है। ये एक सॉल्ट होता है और जनरली हमारे जो भी सोप होते हैं वो यही होते हैं, सोडियम स्टेरेट। क्लियर है? इज दिस ओके? ये बात समझ में आ रही है ना? अब वाटर में, जिस वाटर के अंदर हम ये सोडियम स्टेरेट को डालते हैं और ये लेदर प्रोड्यूस करें, ठीक है, गुड लेदर प्रोड्यूस करें, उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। और डज नॉट गिव गुड लेदर या डज नॉट गिव लेदर अगर होता है, कंडीशन सेटिस्फाई होता है, वी कॉल इट हार्ड वाटर, ठीक है। सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर में मतलब ये प्रॉब्लम क्या है, मतलब अगर सिर्फ साबुन धोने में प्रॉब्लम हो रही होती है या धोने, कपड़े धोने और ये सारी चीजों की प्रॉब्लम रहती है तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। वी हैव डिटर्जेंट, वी हैव मेड डिटर्जेंट, ठीक है। जो डिटर्जेंट जो होता है ना, जैसे वॉशिंग पाउडर जो होते हैं, washing powder, Nirma, Ariel, you name anything, they work on a different principle altogether. They don't have sodium stearate in them, and therefore the problem, the chemical problem which is faced in these segment, the chemical problem which we are going to face in this will eventually not happen with the detergent, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होने वाला है, that is going to be decided by the chemicals. I mean that is because of certain chemicals which are present in hard water and those are absent in soft water, ठीक है।
तो चूंकि वो एब्सेंट रहते हैं सॉफ्ट वाटर में, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती है, इट गिव्स गुड लेदर। हार्ड वाटर में वो प्रेजेंट होते हैं, तो वो करेंगे क्या, इंस्टेड ऑफ लाइक सोडियम स्टेरेट अपना नॉर्मल लेदर प्रोड्यूस करे, इसके बदले ये सोडियम स्टेरेट जो होता है, यहाँ पर जो चीजें प्रेजेंट होती हैं हार्ड वाटर के अंदर, उसके साथ रिएक्ट करने लगता है। जीजाजी 10 दिन रहने वाले हैं कि चले जाएंगे? आलिया सोडियम स्टेरेट, ठीक है। सो देखो, वॉशिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ ज्यादा इशू नहीं होती, ये सिर्फ टेस्ट होता है, ये सिर्फ टेस्ट होता है जिसमें जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि कोई वाटर हार्ड है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो लेदर दे रहा है तो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। अगर लेदर नहीं दे रहा है सोप के साथ, इसका मतलब हार्ड है। तो जनरली आप इसके क्या बोलते हैं, समंदर का पानी जो लेते हैं ना, सी वाटर जो होता है, दैट इज हार्ड वाटर। उसमें डिजॉल्व वो सारे सॉल्ट्स होते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। और होता क्या है, ये सोडियम स्टेरेट बेसिकली प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा वो एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। सोडियम स्टेरेट मान लो यहाँ पर है, स्टेरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर कोई एक सॉल्ट है AB करके, जैसे इसके बदले मैं KCl ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर KCl के साथ रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि विच इज मोर रिएक्टिव, सोडियम एंड पोटेशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो वी नो दैट पोटेशियम इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव देन सोडियम, ठीक है। दूसरी चीज, ये अनायन जो है उसमें दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, दिस अनायन और दिस अनायन, ठीक है। विच इज मोर रिएक्टिव? ऑब्वियसली क्लोराइड आयन इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। दिस इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। यस सर। अभी पेयरिंग अगर करते हैं तो ये लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव कटायन के साथ बॉन्डेड है, और मोर रिएक्टिव कटायन मोर रिएक्टिव अनायन के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। under any case, so under this circumstance they are not going to interchange or exchange their anion or cation, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, no reaction will take place, ठीक है। no reaction, is it okay? on contrary, अगर यहाँ पर KCl के बदले MgCl रहे या फिर कैल्शियम क्लोराइड रहे, तो what will happen, Mg और कैल्शियम जो है, इनको अगर मैं कंपेयर करता हूँ सोडियम के साथ, तो विच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव, सोडियम और Mg, और सोडियम और कैल्शियम। इनफैक्ट बैरियम वगैरह से भी सोडियम ज्यादा रिएक्टिव रहता है, इज इट ओके? यस सर। रिएक्टिविटी में स्पेशली मैग्नीशियम और कैल्शियम से एटलीस्ट सोडियम ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। बैरियम से हो या ना हो, सोडियम से मैग्नीशियम और कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव रहता है। एक्चुअली स्ट्रोंशियम और बैरियम से ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहता है, स्ट्रोंशियम और बैरियम से सोडियम कम रिएक्टिव रहता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है सोडियम से कम रिएक्टिव है, और स्ट्रोंशियम और बैरियम, सो इट इज गोइंग टू बी द रिएक्टिविटी सीरीज इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस।
ये स्ट्रॉन्सियम बैरियम से ज्यादा, स्ट्रॉन्सियम से कम सोडियम है और सोडियम से कम कैल्शियम, इससे कम मैग्नीशियम। ठीक है, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम से सोडियम जो होगा ज्यादा रिएक्टिव है और बैरियम स्ट्रॉन्सियम से कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्सियम और बैरियम के सॉल्ट्स होंगे, ठीक है, तो what will happen? Will the reaction take place? No, it will not take place as was in the case with KCl. क्यों? क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव कटायन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव अनायन के साथ बॉन्डेड है, सो नो रिएक्शन। बट अगर सोडियम और मैग्नीशियम क्लोराइड अगर रहता है यहाँ पर, सोडियम स्टेरेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम स्टेरेट एंड कैल्शियम क्लोराइड रहता है, तो व्हाट विल हैपन? एक्सचेंज ऑफ कटायन और एक्सचेंज ऑफ अनायन विल हैपन। ठीक है, क्यों? क्योंकि Mg सोडियम से कम रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव कटायन ज्यादा रिएक्टिव अनायन के साथ बॉन्डेड है। अब तो करना था बस यही है कि वो जमानत बस नहीं मिले और अंदर रहे, जब तक सुनवाई हो तब तक अंदर रहे, बस जमानत नहीं मिले, ये Am I making sense? ये बात समझ में आ रही है? अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स रहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर रिएक्शन होएगा। ठीक है, व्हाट इज द पॉइंट? क्या होगा? रिएक्शन हो करके इट विल फॉर्म स्टेरेट CH35 COOMg प्लस NaCl हो जाएगा एंड दिस इज प्लस NaCl हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये इसको जो झाग देना था, झाग देने के बजाय, द लेदर प्रोड्यूस करने के बजाय, व्हाट इट डिड, इट रिएक्टेड विद दीज सॉल्ट्स। ठीक है, दैट इज व्हाट हैपेंस, दैट इज व्हाई इट डजंट गिव गुड लेदर। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम हमारा क्या है, खाने पकाने और ये कपड़ा साबुन धोने के लिए हम वाटर का जितना यूज करते हैं उससे ज्यादा यूज कहीं और होता है। ठीक है, ज्यादा यूज कहाँ होता है? तो फॉर दैट वी नीड टू सी द यूसेज ऑफ वाटर। ठीक है, wait a second. Uses of water, बेसिकली दो तीन चीजें जो है जहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस रहती हैं इसकी, वो मैं बता देता हूँ। द वन इज इन मेनली इंडस्ट्री है, तो आज कैसे कर लेगी, मतलब वो प्रेम कैसे कर, वो सब बातें लिख लो। है मेनली क्या बोलो? हाँ हाँ मेनली आपका ये होता है मेन यूसेज जो होता है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ये होता है कि फर्नेसेस के अंदर हम वाटर यूज करते हैं या फिर एज अ सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, तो सॉल्वेंट में भी एक्सचेंज होने के चांसेस रहते हैं। और मेन प्रॉब्लम जो रहती है ना वो होती है फर्नेस के अंदर जब हम हार्ड वाटर को यूज करते हैं ना, तो फर्नेस की ये लाइनिंग पे ना, यानी टॉप लेयर पे यहाँ पर ये लेयर पे, इंटरनल लेयर पे वाइट कलर के स्केल्स पड़ जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो सॉल्ट है ना, इसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, इनका लेयर्स यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, और सिर्फ डिपॉजिट ही नहीं होता है, फर्नेस का लाइफ टाइम जो है ये डिक्रीज करता है। ऐसा वाटर अगर हार्ड वाटर है तो एक तो जब फर्नेस हम यूज क्यों कर रहे हैं, किसी चीज को हीट करने के लिए, और इसके ऊपर अगर इस तरह का एक सॉल्ट का लेयर बन गया
तो इफेक्टिव टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए जैसे मुझे 2000 डिग्री सेल्सियस करना चाहिए, ठीक है, तो 2000 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए जितनी सप्लाई ऑफ एनर्जी मुझे नॉर्मल कंडीशन में करनी पड़ेगी, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा करना पड़ेगा अगर यहाँ पर स्किल्स रहेगा तो फ्यूल कंजम्पशन जो होगा हमारा या एनर्जी कंजम्पशन जो होगा वो ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगा। दैट इज वन डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर। दूसरा डिसएडवांटेज, ये सॉल्ट जो यहाँ पर होते हैं ना, ये व्हाइट लेयर जो बना, ये एक्चुअली इसके सरफेस मतलब इस पे जो मटेरियल है क्या बोलते हैं कि जिस मेटल या मटेरियल का ये बना हुआ है, उस मटेरियल या उस अलॉय के साथ ये सॉल्ट्स रिएक्ट करने लगते हैं, ठीक है, तो हमारा वियर एंड टियर जो होता है फर्नेस का वो बढ़ जाता है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा और ये बढ़ जाएगा, वियर एंड टियर ऑफ फर्नेस बढ़ जाएगा। या ऐसा जहां पर भी इस वाटर को यूज करेंगे एट हाई टेम्परेचर, उन हर जगह पे ये प्रॉब्लम्स होएगी, ठीक है, and that is why this hard water is not very good for ये नॉर्मल इंडस्ट्रियल यूसेज, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम खाना पकाना, मतलब खाने पीने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे बॉडी के अंदर में चला जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम हमें ज्यादा नहीं होगी। इनफैक्ट वी नीड दीज मिनरल्स, दे आर गुड फॉर अस, ठीक है। द प्रॉब्लम इज ओवर देयर एंड इसकी वजह से हम इस वाटर को यूज करना नेग्लेक्ट करते हैं या फिर इसको आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? दूसरी हमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ मैग्नीशियम या एक्सेसिव यूज ऑफ कैल्शियम इज ऑलवेज नॉट गुड, फॉर दैट मैटर एक्सेसिव यूज ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड्स आर आल्सो नॉट दैट गुड, ठीक है। तो हमारे लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है हार्ड वाटर में, बट बहुत ड्रास्टिक कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में अपने, जहां पर फ्रिक्वेंटली वाटर को यूज किया जाना है और वैसे में अगर हार्ड वाटर हमारे पास रहता है तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। इसलिए हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना इज बिकम अ वेरी नेसेसरी टास्क फॉर अस बिफोर सप्लाइंग इट इनटू द दिस थिंग, क्या बोलते हैं, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस या जनरल कहीं पर भी यूज करने के लिए अगर हमको भेजना है तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना मैंडेटरी होता है। वाटर हार्ड कब होता है? It is generally soluble salts, free from soluble salts of calcium and magnesium, तो उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। हार्ड वाटर में क्या रहेगा? It will have dissolved bicarbonate, sulfate and chlorides of calcium and magnesium, ठीक है, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अगर डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, तो व्हाट डू वी हैव? वी कॉल दैट अ हार्ड वाटर, ठीक है। एंड देन ये वाला रिएक्शन होता है जो यहाँ पर लिखा है मैंने, the soap, sodium stearate, magnesium, that is forming magnesium salt, या फिर कैल्शियम यहाँ पर रहेगा, कैल्शियम सॉल्ट बना लेगा और सोडियम आयन को बाहर कर देता है। तो ये स्टेरेट जो सोप लेदर देना था इसको, वो लेदर ना दे करके क्या किया, इंटरनल रिएक्शन करके कंज्यूम हो गया, सोप खत्म हो गया, लेदर हमको मिला ही नहीं, ठीक है, तो हमारा काम नहीं होगा। दैट इज अ टेस्ट ओनली, अगेन आई एम सेइंग दैट इज टेस्ट टू आइडेंटिफाई हार्ड वाटर। टाइप्स ऑफ हार्डनेस दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, 2 दिन बाद आ जाइएगा तो उसको कितना सहारा दे लीजिएगा, वही 2 दिन में, ठीक है। बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिसॉल्व्ड अगर होता है तो टेम्परेरी हार्डनेस इसको बोलते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस क्यों बोला जाता है? जस्ट बिकॉज क्योंकि इसको अगर हीट करेंगे हम ना, टेम्परेरी हार्डनेस में ये होता है, टेम्परेरी हार्डनेस में ये होता है कि बाइकार्बोनेट को अगर हीट करते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू ब्रेक डाउन एंड जनरली प्रोड्यूसेस कार्बोनेट, या मैग्नीशियम के केस में इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड, जो दोनों ही
जो दोनों ही प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं एंड और ये इतना जल्दी नहीं हो सकता, साढ़े तो 4-5 सर थोड़ा सा ऊपर लीजिए ना। जाओ आओ जाओ या सो टेम्पररी हार्डनेस में बस यही होता है कि हीटिंग से ना ये हार्डनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि कंपाउंड जो हार्डनेस क्रिएट कर रहा होता है, जो लेदर नहीं प्रोड्यूस करने देता है सोप को, वो डिकम्पोज कर जाता है एंड इट फॉर्म्स आइदर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट। ठीक है, कार्बो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट के केस में इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के केस कैल्शियम बाइकार्बोनेट के केस में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के केस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बनता है। ठीक है, और ये चीज ध्यान में रखना है। बाकी सारे कार्बोनेट जो होंगे ना, जैसे इट्स नॉट ओनली कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे स्ट्रोंशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम ये बैरियम बाइकार्बोनेट को भी हीट करेंगे ना, तो वी आर गोइंग टू हैव कार्बोनेट्स बीइंग फॉर्म। ठीक है, और ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी व्हाट, दे ऑल आर गोइंग टू बी फॉर्मिंग द प्रेसिपिटेट, not they will not dissolve into water। ठीक है, it is only मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड इधर से ये, और बाकी ग्रुप 1 वाले सारे बाइकार्बोनेट जो है ना, वो भी जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको अगर हम हीट करते हैं इट विल ब्रेक डाउन इनटू सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। ठीक है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट विल ब्रेक डाउन इनटू पोटेशियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड सो ऑन सो फोर्थ। ग्रुप 1 में सिर्फ लिथियम और ग्रुप 2 में बेरिलियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों जो है ना, दे आर गोइंग टू ब्रेक एज हाइड्रोक्साइड। लिथियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो दैट विल आल्सो प्रोड्यूस लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अरे यार सॉरी, यहाँ पर ये मैंने गलत कर लिख दिया है इसको, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड नॉट, am I making sense? So टेम्पररी हार्डनेस उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हीट करने से ये हार्डनेस खत्म हो जाता है। परमानेंट हार्डनेस में इवन इफ यू हीट परमानेंट हार्ड वाटर, तो द हार्डनेस विल नॉट गो, क्योंकि क्लोराइड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम विल नॉट eventually get decomposed. Is it okay? Boiling में bicarbonates are breaking into either hydroxide or calcium carbonate, hydroxide or carbonate, and therefore the permanent hardness is ये getting the hardness is getting removed। एक चीज और यहाँ पर मैंने दो चीजें बताई, लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी लिथियम बाइकार्बोनेट, बेरिलियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इन ये तीन जो है ये डिकम्पोज होकर के क्या देंगे हम लोगों को, रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स देंगे, LiOH, BOH होल ट्वाइस एंड NaOH होल ट्वाइस। ठीक है, बाकी सारे बाइकार्बोनेट, रेस्ट ऑल बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट of group 1 and group 2 will produce carbonates। ठीक है, अब वो कार्बोनेट अगर ग्रुप 2 वाले मटेरियल्स के हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के हैं, दैट इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बैरियम है, ठीक है ना, तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है।
Am I making sense? बाइकार्बोनेट Yes, sir. डिसॉल्व रहेगा, कार्बोनेट कैल्शियम मैग्नीशियम सॉरी कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बैरियम, ये तीनों के प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे और बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ग्रुप 1 के कार्बोनेट जो होंगे दे आर गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड ओनली, वो पानी के अंदर डिसॉल्व ही रहेंगे, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करते हैं। खैर ये मैं ग्रुप 1 में फिर से डिस्कस करूंगा, अभी जस्ट एक बार बता दिया। क्लार्क मेथड में क्या होता है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइन दैट इज CaOH is added into the hard water so that the magnesium bicarbonate and calcium bicarbonate may react with it to produce calcium carbonate and water and calcium carbonate and magnesium hydroxide and water, ठीक है। In any way the bicarbonate is getting converted into carbonate, ठीक है, bicarbonate is getting converted into carbonate and ये दोनों प्रेसिपिटेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के केस में दोनों प्रेसिपिटेट होकर के बैठ जाते हैं, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ये बैठ जाता है एंड देयरफॉर योर वाटर बिकम फ्री फ्रॉम दीज सॉल्युबल सॉल्ट्स। इज इट ओके? क्लार्क्स मेथड, तो दो मेथड है टेम्परेरी वाटर के हार्डनेस को हटाने के लिए, वन इज बॉइलिंग, अनदर इज क्लार्क्स मेथड। नेक्स्ट वन इज परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग से नहीं जाता है। नंबर 1, इट इज बिकॉज ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व है, वी कॉल इट परमानेंट हार्डनेस। क्यों? क्योंकि ये बॉइलिंग से नहीं जाएगा, ठीक है। does not go away with heating. Is it okay? तो अब इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। वी हैव 4 डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट वन इज इफ वी आर गोइंग टू ट्रीट द हार्ड वाटर with washing soda, that is sodium carbonate. If I am going to treat this permanent hard water with washing soda, sodium carbonate, MgCl2 will react with sodium carbonate to form magnesium carbonate and NaCl. Calcium chloride will react with sodium carbonate to form calcium carbonate and NaCl. ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे और ये प्रेसिपिटेट करेंगे। सो बेसिकली ये डिसॉल्व सॉल्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे वो ये नहीं क्रिएट कर पाएंगे। कुछ प्रेसिपिटेट होकर के निकल गए, प्रेसिपिटेट होकर के कटायन प्रेसिपिटेट होकर के निकल गया और ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि रिएक्टिविटी में इससे कोई प्रॉब्लम, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट आर नॉट गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है। डिसॉल्व्ड आयन रहेंगे, दे आर आयंस, मतलब सोडियम आयन या क्लोराइड सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, ये हाइड्रेट होने के बाद ना वाटर के साथ वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद इनकी रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, ठीक है। ये आयंस के फॉर्मेट में रहते हैं और ये किसी तरह का क्रॉस रिएक्शन जनरली नहीं करते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू सेटल डाउन देयर और बी देयर, मे बी देयर, उनको फिल्टर आउट हम कर सकते हैं विद सुटेबल मेथड्स, वी कैन फिल्टर देम आउट। ये खुद से फिल्टर हो गए, इनको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं या इनका प्रेजेंस हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। Calgon method, there is something called Calgon. Calgon is nothing but sodium hexametaphosphate. Sodium hexametaphosphate. Sodium hexametaphosphate. Sodium hexametaphosphate. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैलेगॉन। कैलेगॉन को वाटर में, कैलेगॉन को वाटर में जब हम डालते हैं तो इट डिसोसिएट एज दी सोडियम आयन एंड दिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है।
जनरली Mg प्लस या Ca प्लस के साथ Mg2 प्लस या Ca2 प्लस के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम को, तो ये सोडियम जो है क्रिस्टलाइजेशन स्फीयर के अंदर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये रिएक्ट करके बाहर निकलता है, ठीक है। ये रिएक्ट करता है और सोडियम या कैल्शियम जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला जाता है रिएक्शन में। सो इट फॉर्म समथिंग लाइक दिस, वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर के ये ऐसे ब्रेक हो गया सोडियम आयन एंड ये अनायन टेट्रासोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट अनायन में, और ये अनायन फिर Mg2 प्लस या कैल्शियम 2 प्लस के साथ रिएक्ट करके डाईमैग्नीशियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डाईमैग्नीशियम हेक्सामेटाफॉस्फेट या डाई कैल्शियम हेक्सामेटाफॉस्फेट अनायन का फॉर्मेशन किया। Na जो यहाँ से निकला वो NaCl या NaSO4 बना लिया। NaCl अगर क्लोराइड सॉल्ट है तो, सल्फेट सॉल्ट है तो सोडियम सल्फेट बना लिया, एंड दैट्स हाउ our hardness producing entities are lost, they are no more there, ठीक है। These are not hardness producing entities, they will not affect or impact our processes. That is another method. Third method is ध्यानेश नोट कर लिया आपने? सर एक मिनट। डन सर। Next one is ion exchange method using zeolite or permutate. जियोलाइट परम्यूटेट जो होता है वो इस चीज को बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज नोन एज जियोलाइट और परम्यूटेट, ठीक है। ये नाम और फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मेनी टाइम्स इसको एज इट इज पूछ लेते हैं। जनरली रिप्रेजेंटेड एज NaZ। Z क्या होगा हमारा ये भी पूछ सकते हैं, पूछते हैं इनफैक्ट व्हाट इज Z। NaZ जियोलाइट को NaZ अगर लिखते हैं तो Z क्या है, just this aluminium silicate AlSiO4 is Z, ठीक है। रिएक्शंस कैसे होगा, तो हमारा जो भी मैग्नीशियम 2 प्लस या फिर कैल्शियम 2 प्लस जो भी आयन रहेगा NaZ के साथ इस तरीके से रिएक्ट करेगा, दिस Na will be replaced by that मैग्नीशियम और कैल्शियम। एक अनायन के बदले दो अनायन चाहिए होगा मुझे हमें, so this is how the reaction is going to be. So यहाँ पर Z is this thing is Z, right? तो यहाँ पर दो आ जाएगा। NaZ is said to be exhausted or used up when all Na in the compound has been used. सारा Na खत्म, zeolite is over. This can be regenerated. Mg वगैरह अगर है यहाँ पर Mg आ गया या जो भी आ गया, रिएक्शन करके NaZ को कंज्यूम कर लिया, ये Na अपना रिएक्ट करके आ गया। अब ये जो सॉलिड बना, इस सॉलिड को अगर MZ2 सॉलिड को अगर NaCl सॉल्यूशन में डालेंगे तो फिर से क्या होता है, ये M जो है वो Cl के साथ और Na जो है वो Z के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो it again forms NCl2 and NaZ, and NaZ is supposed to be regenerated, ठीक है। This is the regeneration of NaZ or zeolite. Regeneration of zeolite. तो इसको साइक्लिक फॉर्म में यूज करते रहेंगे। हमारा एग्जॉस्ट फाइनली क्या हो रहा है, NaCl, NaCl, NaCl. Is it okay? यस सर।
सो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड ये भी नहीं रहेगा, दिस इज क्वाइट इजी टू बी यूज। ये इनफैक्ट कैलगन मेथड जो रहेगा इसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर होते रहेगा, ये बार बार रिसाइकल नहीं हो सकता है अपना, ठीक है। हावेवर दिस इज रिसाइकलेबल, तो जो कंज्यूम हो रहा है वो NaCl है और NaCl काफी फ्रिक्वेंटली हमारे पास अवेलेबल रहता है, मीन इट इज प्रेजेंट इन अबंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सिंथेटिक रेसिन मेथड, ठीक है। सिंथेटिक रेसिन मेथड के अंदर में क्या होता है, रेसिन का मतलब होता है सॉल्यूशन इन विच यू हैव abundant of cation और anion, ठीक है। जिस तरह का कटायनिक रेसिन हो सकता है या अनायनिक रेसिन हो सकता है, ठीक है। कटायनिक रेसिन में देयर विल बी abundance of cationic ion और अनायनिक रेसिन में देयर विल बी abundance of anionic ion, ठीक है। This method is more efficient than zeolite also. Zeolite is quite efficient, but resin method is more efficient than zeolite method, ठीक है। You see the process. लो बेटा, लो जुनो, बेटा। एक काम करते हैं, ये सिंथेटिक रेसिन मेथड जो है ना ये कल सुबह करते हैं, विल स्टॉप हियर। सिंथेटिक रेसिन मेथड जो है वो कल सुबह करते हैं, विल फिनिश द हार्डनेस ऑफ वाटर एंड देन विल गेट इनटू द हेवी वाटर, ठीक है। इज इट ओके ओके? सर। ओके। सर एकदम ऊपर ले जाइए ना, टेस्ट फॉर H2O1। ओके।